وسطی ہند آریائی۔ وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 تک کا زمانہ ہے، جسے ماہرین نے اس کے ارتقائی خصوصیات کے لحاظ سے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور 500 قبل مسیح سے مسیح سن شروع ہونے سے پہلے تک کا زمانہ ہے۔ یہ دور پالی عوام کی مقبول زبان رہی ہے، جس میں جین مت اور بدھ مت کی تعلیمات ملتی ہیں۔ دوسرا دور مسیح سن کے ابتدا سے 500 عیسوی تک کا زمانہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے پراکرت پر نظر ڈالیں۔ پراکرت یہ عہد دراصل پراکرتوں کے آغاز و ارتقاء کا عہد ہے۔ پراکرت کے معنی فطری زبان کے ہیں۔ واضح ہو، پراکرت کے معنی فطری زبان۔ یہاں پراکرتوں سے مراد وہ فطری زبانیں ہیں جو سنسکرت پر لگائی گئی پابندیوں اور قواعد نویسوں کی جکڑ بندیوں کے سبب سنسکرت کے پہلو بہ پہلو وجود میں آ گئی تھیں، جن میں فطری سلاست و روانی تھی اور عوام کی روزمرہ ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ تو یہ ہوئی پراکرت، اور پراکرت کے معنی ابھی ہم لوگ جان گئے، فطری زبان۔ اور ان زمانے میں سنسکرت کے اوپر بہت ساری جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، قواعد نویسیوں کی جکڑ بندی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے پہلو بہ پہلو ایک زبان اور وجود میں آئی، وہ پراکرت کہلائی۔ عوام کا محاورہ یا عوام کی بولی ٹھولی کو پہلی پراکرت کہا گیا ہے، جو ٹکسالی سنسکرت سے مختلف تھی۔ عوام کی بولی ٹھولی کا ادبی روپ پالی ہے۔ خیال رہیں، پالی کیا ہے؟ عوام کی بولی ٹھولی کا ادبی روپ پالی ہے۔ پراکرت کے سب سے قدیم نمونے بدھ اور جینوں کے مذہبی کتابوں یا پھر اشوک کی لاٹوں پر کندہ کیے ہوئے ملتے ہیں۔ پراکرت کے سب سے جو قدیم نمونے ہیں وہ بدھ مذہب اور جین مذہب کی مذہبی کتابوں میں ملتی ہیں، یا پھر اشوک کی جو لاٹ ہے تو ان پر کنندہ کیے ہوئے، ان پر لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی کو ہم پہلی پراکرت مانتے ہیں، اور پراکرت کی اسی ادبی شکل کو پالی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو پراکرت کی یہی جو پہلی شکل ہے وہ پالی کی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن پراکرت کا نام پالی اس وقت پڑا جب پراکرت نے ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور اس پہلی پراکرت پر شورشنی پراکرت کا پورا اثر پڑ چکا تھا۔ یہ بھی دیکھیے اہم بات ابھی ہم لوگ جانیں کہ پراکرت کا نام پالی اس وقت پڑا جب پراکرت نے ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی، تب وہ پراکرت جو ہے وہ پالی زبان ادبی جب حیثیت اختیار کی، تب وہ پالی زبان کا نام سے وہ اس کی ادبی حیثیت اختیار ہوئی، اور اس پہلی پراکرت پر شورشنی پراکرت کا پورا اثر پڑ چکا تھا۔ مسعود حسین خان کے مطابق شروع سے ہی عوام کی زبان ایسی زبان تھی جس میں آریائیوں کی ابتدائی زبان اور دیسی بولیوں دونوں کا میل تھا۔ بعض لوگوں نے اسی کو پہلی پراکرت کہا، اور ویدک سنسکرت اور ادبی سنسکرت دونوں کی ماں مانا ہے۔ ہم اسے ابتدائی زبان کے نام سے یاد کریں گے، یہ بات مسعود حسین خان کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے، مسعود حسین خان کے مطابق پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا ادبی روپ پالی ہے۔ یہ بات مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے
जिसका अदबी रूप पाली है। कदीम पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है। अभी एक बात और हम लोग सीखें कि पाली को ही कदीम मागधी कहा जाता है। लफ्ज़ पाली संस्कृत के पंक्ति से निकला है। जो लफ्ज़ पाली है वो संस्कृत ज़बान का एक लफ्ज़ है, पंक्ति उसी से पाली निकलता है और इसी से उर्दू का पांति, पति और पट्टी है। पंडित हरि अवध की तहकीक के मुताबिक पाली, पंडित हरि अवध की तहकीक है कि पाली जो है बुद्ध धर्मशास्त्री की सूत्र जो लाइन है उसी को पाली कहते हैं। पहली प्राकृत को इब्तदाई प्राकृत भी कहते हैं। पहली जो प्राकृत है उसी को इब्तदाई प्राकृत भी कहते हैं। पहली प्राकृत में पाली और अशोक के कुतुबों की ज़बानों का शुमार होता है। ये दोनों प्राकृत की अव्वलीन शक्लें हैं। तो यहाँ एक सवाल हो सकता है कि प्राकृत की अव्वलीन शक्लें क्या हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि पहली प्राकृत में पाली और अशोक के कुतुबों की ज़बानों का शुमार होता है। तो अशोक की कुतुबों की जो ज़बान है वही तो पाली की पहली प्राकृत है, वही पहली प्राकृत है और वही पाली है। ये दोनों प्राकृत की अव्वलीन शक्लें हैं। अब आगे, बुद्ध मज़हब की ज़बान जो है वो पाली है। बुद्ध मज़हब की ज़बान पाली है। अभी हम लोग पढ़ें इससे पहले। कहा जाता है कि बुद्ध मज़हब के पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध पाली बोलते थे। ये भी एक बात अभी हम लोग जाने कि महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं जो ज़बान बोलते थे वो ज़बान पाली थी। इन्होंने इसी ज़बान में अपने मज़हब की तबलीग की थी। तो गौतम बुद्ध जिस ज़बान में अपनी मजहबी तबलीग किए थे वो ज़बान पाली थी। पाली बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी। अब देखिए लोकेशन भी पता चला कि पाली जो है बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी, जहाँ बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तका अमल में आया था। पाली बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी और वहीं पर बाद में कुछ दौर के बाद मागधी प्राकृत का इर्तका अमल में आया था। बुद्ध मज़हब की तमाम मुस्तनद तसानीफ बशमोल धम्मपद पाली ज़बान में ही पाई जाती है। बुद्ध मज़हब की जो भी मुस्तनद तसानीफ है, किताबें हैं, और उनकी एक किताब है धम्मपद, वो भी पाली ज़बान में है। तो यहाँ से सवाल बनता है कि धम्मपद किस ज़बान में है? तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि पाली ज़बान में धम्मपद है। वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों का दौर कहलाता है। ख्याल रहे, वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा अदबी प्राकृतों का दौर कहलाता है, यानी दूसरी प्राकृत। हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों यानी दूसरी प्राकृत की हस्बे झेल 5 किस्में बयान की हैं। फिर से सुनिए, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन जो हैं वो अदबी प्राकृत यानी दूसरी प्राकृत, अदबी प्राकृत, दूसरी प्राकृत, इसको 5 इसकी जो किस्म है वो बताए हैं कि ये जो दूसरी प्राकृत है इसकी 5 किस्में हैं। वो 5 किस्में कौन कौन है? दूसरी प्राकृत की 5 किस्में देखा जाए, वो 5 किस्में इस तरह से हैं: महाराष्ट्रवी, शोरस्नी, मगधी, अर्धमगधी और पिशासची। अब देखिए इनकी तफसील हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्रवी। ये जनूब की प्राकृत है, महाराष्ट्र जनूब में है तो वहाँ की प्राकृत है। मराठी इसी से निकलती है और मराठी जो ज़बान है वो इसी प्राकृत से निकलती है। संस्कृत के ड्रामों के गीत इसी में लिखे जाते हैं। प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्रवी की कवायद मुरत्तब हुई। इसी ज़माने का बेशतर अदबी सरमाया इसी प्राकृत में मिलता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ें महाराष्ट्रवी के बारे में। अब आगे देखिए शोरस्नी। इसका मरकज़ शोरेसन यानी मथुरा का इलाका है।
تو जो मथुरा का इलाका है, उन इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी वो ज़बान शोरस्नी थी, और शोरस्नी का जो लोकेशन था, जो इलाका था, वो मथुरा था, और मथुरा को शोरेशन भी कहा जाता है, अभी जो मथुरा है। संस्कृत के बाद आला तबका में अगर किसी प्राकृत का रवाज था तो वो यही ज़बान थी जिस पर संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। संस्कृत के बाद आला तबका में अगर किसी प्राकृत का रवाज था तो शोरेशनी का रवाज था, सीधी सीधी बात है, शोरेशनी का रवाज था। और शोरेशन यानी मथुरा का इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी वही शोरेशनी कहलाई। अब देखिए मगधी, ये पूरे मशरकी हिंदुस्तान की बोली थी। इसका मरकज़ मगध यानी जनूबी बिहार था। मगधी जो है, मगधी ये मशरकी हिंदुस्तान में बोली जाती थी और इसका मरकज़ मगध था, जनूबी बिहार। चूँकि ये आर्याइयों के मरकज़ से दूर थी इसलिए इस पर गैर आर्याई बोलियों का शदीद असर मिलता है। चूँकि ये दूर था, ये जो इलाका है वो आर्याइयों के मरकज़ से दूर था, यही वजह है कि इस पर गैर आर्याई बोलियों का शदीद असर मिलता है। इसलिए आर्या इस प्राकृत को हकारत की निगाह से देखते हैं। यही सबब है कि आर्या जो हैं वो मगधी को हकारत की निगाह से देखते थे। अब आइए अर्धमगधी जो है, इसके लफ्ज़ मानी आधी मगधी के हैं। अर्ध मतलब आधा, तो इसके लफ्ज़ी जो मानी है वो है आधी मगधी। इसका मकाम अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश था। अवध का जो इलाका है और मशरकी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश में जो ज़बान बोली जाती थी वो कहलाई अर्धमगधी। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है, जितनी भी प्राकृत हैं उनमें सबसे कदीम जो है अर्धमगधी। इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है। इसी अर्धमगधी में अशोक की तालीमात का प्रचार हुआ है। मगरबी हिंदुस्तान इसे प्राचिया कहा करते हैं और मगरबी हिंदुस्तानी जो हैं इसे ही प्राचिया कहते हैं। अर्धमगधी को ही प्राचिया कहा जाता है। प्राचिया के तहत मगधी और अर्धमगधी दोनों आ जाती। जब हम प्राचिया कहेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो तस्वुर है, उसमें मगधी भी आ जाना चाहिए और अर्धमगधी भी आ जाना चाहिए। गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने इसी प्राकृत को अपनाया था, तो अर्धमगधी को महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने अपनाया था। अब देखिए पशास्ची, ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। पशास्ची जो है कश्मीर और पंजाब का जो इलाका था, उन इलाकों की जो प्राकृत थी वही पशास्ची कहलाई। किश्नों के अहद में इस प्राकृत को फ़रोग़ हुआ। किश्नों के अहद में ही पशास्ची को फ़रोग़ हुआ। इसके बाद अब देखिए तीसरा दौर 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी पर मोहित है। तीसरा दौर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पर मोहित है। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अब हम लोग अपभ्रंश एक नए क्लास के साथ पढ़ेंगे। किताब ज़ियाए उर्दू, मुरत्तिब ज़ियाउल मुस्तफ़ा मिसबाही, नासिर आसी बुक सेंटर।